Are we ready, sir? Boys and girls, girls and boys. The summarized balance sheet of Revise Limited as at 31st March 2012 was as follows. Authorized capital, unsecured loan, 12% debenture, accrued interest. Both this amount will tantamount to what? एक word मैंने आपको सिखाया था, debenture holder. Whenever I use the word debenture holder, it means accrued interest plus debentures. अब इसमें सुनना, कभी भी 12% ऐसा लिखा हुआ रहा तो there is no question of hidden adjustment. Why there is no question of hidden adjustment? Because this is a balance sheet. Hidden adjustment was done when you had a trial balance. Balance sheet is always following the concept of accrual. तो उसमें बैलेंस शीट में जो फिगर आ गए वो फाइनल है. तुम्हें याद है तुम ट्रायल बैलेंस से हिडन एडजस्टमेंट कर कर बैलेंस शीट बनाते थे, तो बैलेंस शीट अगर बन गई तो वो सारे फिगर्स फाइनल है. यू डोंट हैव टू ऐड फर्दर इंटरेस्ट इन दैट अनलेस एंड अंटिल इट इज सेड दैट इट इज आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग ऐसा बोला तो ही ऐड करना है. हिडन एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता बैलेंस शीट में. शैल आई गो अहेड? करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, फिक्स्ड एसेट में मशीनरी, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक एंड P&L account. Okay, it was decided to reconstruct the company, for which necessary resolution was passed and sanctions were obtained from appropriate authorities. Accordingly, it was decided that each share is subdivided into 10 fully paid up equity shares of 10 each. I think ये adjustment आपको अभी आती है. Say yes. So इसकी एंट्री क्या आएगी? Equity share capital account debit to equity share capital account. Only the numbers will change and face value will change. Next. After subdivision, each shareholder shall surrender to the company 50% of his holding for the purpose of reissue to the debenture holder and trade payable if as necessary. मतलब हम क्या करेंगे? शेयर सरेंडर करा लेंगे और वो शेयर सरेंडर से हम किसकी लाइबिलिटी खत्म करेंगे? डिबेंचर होल्डर और ट्रेड पेएबल. ऐसा क्लियरली बोला गया. नेक्स्ट, आउट ऑफ शेयर सरेंडर्ड 10,000 shares of 10 each shall be converted into 12% preference shares of 10 each fully paid up, and the claims of debenture holder shall be reduced by 75%. In consideration of reduction, the debenture holder shall receive preference shares of 1 lakh which are converted out of shares surrendered. I want you all to highlight both these adjustments. This I'll explain you once I start solving the problem. Are we ready? फिर उन्होंने क्या बोला? ट्रेड पेएबल क्लेम shall be reduced to 50%. It is to be settled by issue of equity shares of 10 each out of the shares surrendered. Again, this is pending. Balance of P&L account is to be written off, and the shares surrendered not reissued shall be cancelled. So again, I will expect you to highlight adjustment number C. इस क्वेश्चन को लिख लो. Definitely revise before exam. I am expecting this kind of question in exam this time or maybe next attempt. आने वाली एग्जाम में मैं ये टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो आप रेडी हो जाइए. हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करते हैं. सो बेटा जी, एक बार फॉर्मेट बना लीजिए. अच्छा, ये वाला जो जर्नल एंट्रीज है, ये जर्नल एंट्री आपको समझेगी कब? जब हम इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे. तो एक जर्नल एंट्री नहीं समझी तो रहने देना पेंडिंग. क्यों नहीं समझेगी मैं समझा भी सकता हूं, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मुझे ये फॉर्मेट परफेक्टली मैच करना है मॉड्यूल के हिसाब से. इन अलग को मैं पहले ही बोल रहा हूं, सीरियसली टाइम पर आ जाए करो. ओ पर्टिकुलर्स रुपीज. हाँ, शैल वी स्टार्ट? तो पहली एंट्री हम लिखेंगे किसकी? सब डिवीजन की. इज दैट ओके? तो सब डिवीजन की एंट्री करो. सब डिवीजन मतलब पहले शेयर्स को कन्वर्ट कर देंगे. बेटा जरा देख के बताओ तो, अपने बुक्स में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के थे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
₹100 each. Can I have the amount please? कितने रुपए के थे हमारे पास? Do you all believe that it is 10 lakh? ये 100 rupees each था, तो हम क्या करेंगे? 2 equity share capital. इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए का? ₹10 ईच. कितना आ जाएगा? 10 लाख. अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये अमाउंट कितने लेंगे? ये नंबर कितने लेंगे? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग हाउ मेनी शेयर्स? बीइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, of ₹100 each, subdivided into 1 लाख हो जाएगा बेटा. 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. ठीक है बेटा? ऑल राइट. Then what is expected next? हम शेयर को सरेंडर करा देंगे. सो शेयर को सरेंडर कैसे करेंगे बेटा जी? व्हाट इज द एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल. बेटा कितने नंबर इक्विटी शेयर सरेंडर कराने? जरा रीड द एडजस्टमेंट नंबर 2. आफ्टर सब डिविजन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द शेयर्स आर सरेंडर्ड? 50%. चेक करो 50% है क्या? सो माई एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10 each. I shall write down 10 lakhs. To equity share capital, to share surrendered account. बेटा ये 10 lakhs नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी. ये 5 लाख आएगा. जितना सरेंडर करेंगे उतना ही. ये 5 लाख आएगा. एंड टू शेयर्स सरेंडर अकाउंट हाउ मच? 5 लाख. बेटा अभी शेयर सरेंडर्ड मतलब क्या है? ये एक हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. नरेशन लिखिए. बीइंग 50% ऑफ द शेयर्स, 50% ऑफ द शेयर्स सरेंडर्ड. बीइंग 50% ऑफ द शेयर्स सरेंडर्ड. बीइंग 50% ऑफ द शेयर्स सरेंडर्ड. ओके, ऑलराइट. As per the scheme, whatever you want to write down. Now everyone, ये शेयर सरेंडर क्या है? ये शेयर सरेंडर हमारे पास एक समझ लीजिए कि ऐसी एक संदूक है. ये वैसे बकेट लग रही है. संदूक है जिसके अंदर तुमने डाल के रखे कि ये शेयर सरेंडर हमारे पास पड़े हुए. इसमें से निकालकर हम लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे. इसमें से निकालकर हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे. वी विल स्टार्ट मेकिंग द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी. एम आई कम्युनिकेटिंग? जरा ध्यान से पढ़िए किस लाइबिलिटी को दे रहे. तो हम 2 लाइबिलिटी को दे रहे. एडजस्टमेंट नंबर 2 में ही पढ़िए कि शेयर सरेंडर्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. बोला है कि नहीं बोला है? इट इज गिवन आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ री इश्यू टू डिबेंचर होल्डर एंड ट्रेड पेएबल. मतलब डिबेंचर्स की और ट्रेड पेएबल की लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए उसका यूज किया जाएगा. एम आई कम्युनिकेटिंग? सो बॉयज एंड गर्ल्स, अब क्या हुआ जरा जाके देखते हैं. आउट ऑफ शेयर सरेंडर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each shall be converted into 12% preference shares of 10 each fully paid up. क्या हुआ? शेयर सरेंडर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इसमें से निकलकर शेयर सरेंडर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. एग्रीड? अब बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सर्टिफिकेट को इमेजिन करो. कैन यू इमेजिन द सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट पर किसी ना किसी व्यक्ति का नाम लिखा होगा. किसका नाम लिखा हुआ है? जिनसे सरेंडर करा है उनका तो नाम नहीं लिखा होगा. उनसे तो ले लिया हमने, तो इससे निकालकर हमने किसी का नाम लिखा है. वो एडजस्टमेंट डी में लिखा है. किसका नाम लिखा है? देखो, द क्लेम्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75%. मतलब हम डिबेंचर होल्डर को क्या कर देंगे? उनका क्लेम कम कर देंगे. कितने से? 75%. बट वो ये कम करने को क्यों तैयार हो गए? इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन द डिबेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 lakh which are converted out of the share surrendered. So please tell me कि ये डिबेंचर होल्डर को क्या मिला?
आवाज ही नहीं आ रही है। प्रेफरेंस शेयर मतलब अगर नाम लिखा है प्रेफरेंस शेयर पर तो किसका नाम लिखा है? डिबेंचर होल्डर। और उनको ऐसे कितने रुपए मिल गए? 1 लाख। तो जरा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे बैलेंस शीट में ऐसे डिबेंचर्स है, यस और नो? डिबेंचर्स होंगे मेरे हिसाब से कितने हैं डिबेंचर्स? 2 लाख। 2 लाख का 75% कितना आ रहा है? 2 लाख का 75% 1,50,000। ऑल राइट, सो मैंने लिख दिया जी ये काटकर 50,000 बचा है, 1,50,000 तो खत्म करना है। बोला है कि नहीं बोला है? हाँ, यस और नो? हाँ, एक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा। आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच। सो इधर मैं एक्चुअली इधर क्यों ले रहा हूं? मैं तो एक एग्जांपल ले रहा था, उधर लूंगा बराबर से, ठीक है ना? अभी ये समझा रहा हूं सिर्फ, बट ठीक है मैंने एग्जांपल उधर के लिए तो एक्रूड इंटरेस्ट भी ले लेते। कितना है बेटा जी एक्रूड इंटरेस्ट? हाउ मच? सो 24,000 को भी कितना कम कर देंगे? 75%, क्योंकि डिबेंचर होल्डर बोला तो इट विल मीन डिबेंचर प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। बेटा 24,000 इंटू 75% तो कितना हो गया? 18,000। माइनस करेंगे तो कितना रहना चाहिए? 6,000। बेटा जी ये 24,000 और 2 लाख खत्म कर दिया हमने, कितने से? 75%। बट वो अपने आप का क्लेम 75% कम करने के लिए उन्होंने क्या मांगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बेटा जी मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इश्यू कर दिया, कितने का? 1 लाख। एग्रीड? तो बेटा जी ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसको मिला है? डिबेंचर होल्डर। अगर तुमने एंट्री ऐसे की, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एग्रीड, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये एंट्री गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां से री इश्यू कर रहे हैं? शेयर सरेंडर। तो 2 लेग्स ऑफ द ट्रांजेक्शन है यहां पर। फर्स्ट लेग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज शेयर सरेंडर टू व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी अपने दिल से पूछो किसको दिया मैंने ये? डिबेंचर होल्डर। तो क्या उनकी लाइबिलिटी मैंने समाप्त की क्या नहीं की? यस। आई रिपीट अगेन, मैंने ये शेयर्स किसको दिए? डिबेंचर होल्डर। कहीं पर भी नामो निशान नहीं दिख रहा है कि किसको दिए, बट आपको समझना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के जो सर्टिफिकेट हमने दिए उन पर नाम किसका आया? डिबेंचर होल्डर। मतलब ये मिले उनको ही है। और ये वाली एंट्री क्या होगी फिर? आपके डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और ये अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटा जी? ये आएगी 1,50,000, ये आएगा 18,000, तो इस तरीके से ये जाएगा 1,68,000। अब बच्चा क्या सोचता है कि सर 1,68,000 में से 1 लाख तो मिला था, तो कैपिटल रिडक्शन में कितना जाना चाहिए? 68,000। ऐसा नहीं होगा, इसमें पूरा 168 कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। क्योंकि हमने क्या किया है, उनको जो देना था वो इधर दे दिया, तो वो एंट्री अलग से हो गई। अब वो एंट्री अलग से होने के बाद में अपने दिल से पूछो, क्या वो डिबेंचर को प्रेफरेंस शेयर मिलने के बाद में क्या वो मेरे बुक्स में रहने चाहिए क्या? नहीं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो शेयर सरेंडर में ये चीज ध्यान में रखना, व्हेन यू सरेंडर द शेयर्स यू विल डू समथिंग आउट ऑफ दैट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू री इश्यू। तो तुमने री इश्यू किया तो किसी न किसी व्यक्ति को तो किया, जिस व्यक्ति को किया उसकी लाइबिलिटी जितने परसेंट से बोलिए डायरेक्टली पूरी रिड्यूस कर दो, उसका बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिडक्शन में नहीं जाता। अभी तक आइडियली हम कैसे करते आए थे एंट्री? ये एंट्री ऐसे करते आए थे, ये देखो, हम कहते थे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या करते थे हम? डैश परसेंटेज डिबेंचर, मतलब 25% तो बचा है ना, सो डैश परसेंटेज डिबेंचर्स ऐसा बैलेंस, एंड टू व्हाट करते थे? कैपिटल रिडक्शन। बट उस केस में शेयर सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। उस केस में क्या था कि हमारे डिबेंचर्स ही कन्वर्ट होते थे नए डिबेंचर्स में, और बचा हुआ हम फिगर कहां डाल देते थे? कैपिटल रिडक्शन। ये वाली एंट्री इधर काम नहीं देगी। एग्रीड? तो इधर एंट्री कैसे आएगी बताओ? 2 लेग्स ऑफ एंट्री होगी। पहले मुझे बताओ डिबेंचर्स को क्या मिल रहा है? तो क्या उतनी से एंट्री आप ड्राफ्ट कर सकते हो क्या? बताओ मुझे क्या एंट्री होगी? शेयर सरेंडर्ड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो डिबेंचर होल्डर को मिलना है वो मिल गया या नहीं मिला? मिल गया। फिर नेक्स्ट, अब मुझे बताओ क्या डिबेंचर होल्डर मेरे बुक्स में रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जब उनकी लाइबिलिटी सेटल हो गई तो व्हाई द डिबेंचर शुड बी देयर इन माय बुक्स? तो कितने परसेंटेज नहीं होने चाहिए? पूरे 100% है 75%? 75%। तो मेरी एंट्री क्या होगी? डैश परसेंटेज डिबेंचर्स, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कंप्लीटली 75%। एग्रीड? सो शैल वी मेक द एंट्री? बेटा जैसे मैंने कहा कि मैं ये एंट्री सिखाया जरूर मैंने आपको अभी, बट आई विल गिव इट इन द फॉर्मेट विच द इंस्टीट्यूट हैज गिवन। तो इंस्टीट्यूट ने पहले क्या किया? दोनों डिबेंचर्स और क्या नाम क्रेडिटर्स को रिड्यूस किया है, और शेयर सरेंडर में से एक साथ शेयर्स इश्यू किए किसको?
क्रेडिटर्स को और किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। मैं अभी जब एंट्रीज कर लूंगा तो मैंने बताया था आपको कि प्रॉब्लम पूरी हो जाने के बाद में आपको समझ में आएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना अगले 3 एंट्रीज के लिए, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज कम डाउन टू दी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या होगी, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बोलो बेटा कितना आएगा, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। माय डियर फ्रेंड, कितना परसेंटेज रिड्यूस हो रहा है, 100% या 75%? तो जितना रिड्यूस हो रहा है उतना रिड्यूस करेंगे। कितना बोलेंगे, 1,50,000। फिर आगे बताओ, 1,50,000। अरे क्या हो गया, 1,50,000। फिर अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बोलो कितना है, 18,000। तो क्या लिखेंगे बेटा जी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और यू कैन ऑल्सो से रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कितना आ जाएगा, 1,68,000। राइट डाउन द नरेशन। बीइंग 75% of the claim, being 75% of the claim of debenture holder, being 75% of the claim of debenture holder, being 75% of the claim of debenture holders, including accrued interest, including accrued interest, including accrued interest, reduced in consideration of, reduced in consideration of, in consideration of allotment of, in consideration of allotment of preference shares, reduced in consideration of allotment of preference shares. Appreciate this? Yeah. So boys and girls, with this we have done with the third entry. मैंने बताया कि 3 एंट्रीज हो जाने तो फिर आपको समझ में आएगा। सो बेटा जी अब नेक्स्ट आ जाइए आप, उसके बाद में क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला है, क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला है, ट्रेड पेएबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%। बेटा 1000 बार अंडरलाइन कर दो या फिर वहां पर लिख दो, वहां पर ये वर्ड नहीं है, इन कंसिडरेशन ऑफ विच। मैंने आपको कल शेयर सरेंडर में बताया था कि 2 घातक चीजें, रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली, वो अभी मैं समझा रहा हूं। देखो, ट्रेड पेएबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50% बोला है, यहां तक तो समझ में आया। इट इज टू बी सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। मैं 2 शब्दों का मीनिंग समझाता हूं पहले, और ये हमको 2-3 बार देखना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। पहले वाले में क्या हुआ था कि मान लो एक डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर के पास 1 लाख के डिबेंचर्स थे। I said him, look buddy, you have to reduce your claim to 75,000. Sorry, 25,000. He said, okay, what will I get? If I reduce this, in consideration of reducing this, what will I get? You getting my point? I said him, look buddy, you have to reduce your claim by 75%. He said, okay, what will I get? So he is not getting for 25,000, he is getting for the reduction of 75,000 in consideration of reduction. पढ़ो वहां पर वर्डिंग है क्या, in consideration of the reduction, मतलब रिड्यूस किया, इसके एवज में क्या मिलेगा, ये वर्डिंग का मीनिंग है। बट ट्रेड पेएबल का अलग है। हमने बोला ट्रेड पेएबल, लुक बड़ी, you are 1 lakh, we are reducing it to how much, 50,000, and in consideration word नहीं, 50,000 will be settled। reduce तो ऐसे ही कर दिया, उसके एवज में कुछ नहीं मिल रहा है, बट 50,000 के एवज में तुम्हें शेयर सरेंडर मिलेंगे। इधर इस 75,000 के एवज में क्या मिल रहे थे, शेयर सरेंडर। इधर ऐसा नहीं है, इधर 1 लाख टू 50,000 आया, इन कंसिडरेशन वर्ड नहीं है, एंड इज सेटल्ड बोला है। देखो एंड इज सेटल्ड बोला है कि नहीं बोला है, क्या बोला है देखो, ट्रेड पेएबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%, it is to be settled by issue of equity shares of 10 each out of the shares surrendered. So comes a question, ये जो 50,000 है उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, शेयर सरेंडर। I don't know if you have understood it or not. 2 लाइन में फर्क क्या है, अगर वापस से डायग्राम देखो, डिबेंचर इधर कितना है, 1 लाख है क्या, मैंने इसका क्लेम कितना रिड्यूस करके कर दिया, 25,000 से यस।
अब वो 25,000 को सेटल नहीं कर रहे, बैलेंस शीट में अभी भी 25,000 के डिबेंचर रहेंगे, दे आर नॉट सेटल्ड. द क्लेम इज रिड्यूस्ड बाय 75%, एग्रीड, बट द रिमेनिंग 25,000 इज नॉट सेटल्ड, बैलेंस इज नॉट सेटल्ड. व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर कोई व्यक्ति 75,000 का कम कर रहा है तो वो इसके एवज में मांग रहा है, ही इज आस्किंग शेयर सरेंडर फॉर दिस. इसके लिए वर्डिंग क्या आती है? इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन. इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन, ये हुआ फर्स्ट स्टाइल. दूसरी स्टाइल, हमारे पास 1 लाख के ट्रेड क्रेडिटर्स है, उनको हमने रिड्यूस करके कितना बना दिया? 50,000. ठीक है, तो रिडक्शन कितना हुआ? 50,000. 50,000 के लिए कुछ नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो इसको सेटल कर रहे हैं. मतलब इस केस में माय क्रेडिटर्स इन बुक्स विल बी 0, नॉट 50,000. बट इन दिस केस माय डिबेंचर इन द बुक्स विल बी 25,000, नॉट 0. Are you understanding? क्योंकि 25,000 is not settled in case 1, but in case 2, 50,000 is settled. Yes or no? Please read करो दोनों लाइन. कल मैंने एक लास्ट लाइन लिख कर दी थी आपको, घर जाते हो क्या लिख कर दिया था? Read the problem very carefully. अभी इन दोनों का मीनिंग किसको नहीं समझा है, मैं वापस समझाने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने बोला ना इस बार एग्जाम में या इसके आगे के एग्जाम में आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. और ये वर्डिंग में गेम करेगा. एक और कौन है? ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं. देखो, अगर आपको कोई बोले कि देख बेटा मैं तुमको पैसे नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारा एक दोस्त है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, 1 लाख रुपए है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैक्सिमम 25,000 रुपए दे पाऊंगा. तो तुम बोलते कोई बात नहीं यार मत दे, बट पार्टी तो देगा कि नहीं देगा? तो अब तुम क्या कर रहे हो? 25,000 को सेटल नहीं करा रहे, 25,000 तो वो देगा. जो तुमने स्कीम को रिड्यूस किया है उसके लिए तुम क्या मांग रहे हो? पार्टी. दूसरा, अब दूसरा वाला तरीका क्या है? दूसरे वाले तरीके में ऐसा बोला गया, एक दोस्त है तुम्हारा जिसने 1 लाख रुपए लिए आपसे, ही इज नॉट एबल टू पे, सो यू गिव हिम 50% डिस्काउंट. बट अब तुमको भरोसा नहीं है कि बचाओ 50% उसके पास रखे, या फिर तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हें वो पैसा वापस मिल जाए. तो तुम बोलते हो कि ठीक है तू मेरा क्लेम कर दे 50% से नीचे, बट जो बचा हुआ 50,000 का बैलेंस है उसको पेंडिंग मत रख, उसको खत्म कर. तो तुम सामने वाले आदमी को क्या बोलते हो कि वो बचा हुआ 50,000 मुझे कैश दे दे, या बचा हुआ 50,000 तू मुझे क्या दे दे? तेरी गाड़ी दे दे. तो अकाउंट सेटल हो जाएगा, नील हो जाएगा. तो क्रेडिटर्स के केस में इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन वर्ड यूज नहीं है. वो दोनों लाइन को एक बार जरा ध्यान से पढ़ो. देखो क्या लिखा है, पढ़ूं वापिस. एडजस्टमेंट ई, ट्रेड पेएबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%, 50% से तो कम किया. ये हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा. बट आगे क्या बोला है? इट इज टू बी सेटल्ड. मतलब जो 50% कम किया उसके बारे में नहीं बात बोल रहे, जो बचा हुआ बैलेंस है उसके बारे में बात कर रहे कि इट इज टू बी सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आउट ऑफ द शेयर्स सरेंडर्ड. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? बट ऊपर वाली लाइन पढ़िए, डी, द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75%. अब ये कम कर दिया. इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन द बैलेंस इज नॉट सेटल्ड. जो रिड्यूस किया उसके एवज में क्या मिलेगा? In consideration of the reduction, the debenture holder shall receive preference shares of 1 lakh which are converted out of shares surrendered. Have you all understood? एक केस में कम करने की वजह को उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम आपको क्या देंगे? शेयर सरेंडर्ड में से शेयर्स. बट दूसरे वाले केस में क्या हुआ है कि आपका बैलेंस कम कर दिया गया, और जो कम कर दिया गया बैलेंस, उस बैलेंस को हम क्या कर देंगे? सेटल्ड. Have you all understood? So very, very crucial wording, and I hope you will do complete justice to it. Is that okay? So बेटा जी, ये पहले जिसको लिख कर लेना है वो लिख कर ले लो. ये सिंबॉलिकली ऐसा प्रेजेंट होता है. इस केस में डिबेंचर का बैलेंस बैलेंस शीट में रहेगा 25,000. इस केस में क्रेडिटर्स का बैलेंस रहेगा बैलेंस शीट में 0. ये सिर्फ एग्जाम्पल है. आई हैवंट टेकन द फिगर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम. Those who are late today, you have missed a very important discussion which we had earlier. और मैंने कहा था कि ये टॉपिक, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है.
आना चाहिए था टाइम पर। ए भाई सुनो ना, अभी तक सारा खत्म नहीं हुआ इसका गेम, अभी तक करने का है। मैं आपको पूछूं, ट्रेड पेएबल्स कितने हैं आपके बैलेंस शीट में? 72,000। मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने जाएंगे? सभी को क्लियर है? क्यों जीरो? क्योंकि 50% से तो रिड्यूस कर दिया और बचा हुआ 50% इज सेटल्ड। सो मेरे ट्रेड पेएबल जो बैलेंस शीट में जाने वाले वो जाने वाले जीरो। यहां तक हो जाए तो बता देना। हो गया? पब्लिक आ जाओ। ऑलराइट, सो कैन आई हैव द फोर्थ एंट्री? जरा ध्यान से देखो क्या लिखूंगा, ये बोलो ना क्या लिखूंगा। नो, आई विल फर्स्ट ट्रांसफर ट्रेड पेएबल। सो ट्रेड पेएबल, मैंने कहा था आपको ये एंट्री समझ में आएगी, 3 एंट्री। वंस आई हैव डन ऑल द 3 एंट्रीज। ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट 72,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट 72,000 इन द ब्रैकेट राइट डाउन नो प्रिंटिंग मिस्टेक। मुझे पता है 72,000 का आधा 36,000 होता है और 36,000 तुम बोलोगे कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा 72,000 कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस, अभी थर्ड एंट्री करते ही आपको समझ में आना चाहिए और वो मैं समझाऊंगा दोबारा और एक बार, फिर देख समझ में आता है कि नहीं आता है। तो ये देयर इज नो प्रिंटिंग मिस्टेक, 72,000 ही होना चाहिए। राइट डाउन द नरेशन। बीइंग trade payable reduced by 50%, trade payable reduced by 50%, and the balance of trade payable, trade payable reduced by 50% and the balance of trade payable settled by issue of shares, from shares surrendered, by issue of shares from shares surrendered। ठीक है, चलो मैं वापस दोबारा पूछू क्या, ये वाली एंट्री क्यों की? देखो थर्ड एंट्री समझ में आने के लिए ये वाली एंट्री क्यों की? फोर्थ नहीं समझ में आई होगी तो भाड़ में जाने दो। थर्ड वाली क्यों की? थर्ड वाली तुमने इसलिए की ना कि डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम कितने से कम कर दिया गया? 75%, और उनको उसकी कंसिडरेशन में क्या मिलेगा? आवाज नहीं आ रही है। प्रेफरेंस शेयर्स। और क्रेडिटर्स को कम करने के लिए कम कर दिया, उसके एवज में कुछ नहीं मिलेगा, बट जो बचा हुआ बैलेंस है वो किससे सेटल होगा? शेयर सरेंडर्ड से। जरा जाके देखो क्रेडिटर्स को क्या मिलने वाला है और क्या नाम, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलने वाला है। डिबेंचर होल्डर को मुझे लगता है प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे और ट्रेड पेएबल को मिलने वाले इक्विटी शेयर। यस और नो? गो एंड चेक। बेटा ये इश्यू की एंट्री हमने की है क्या? इश्यू की एंट्री नहीं की। तो बेटा जी जरा ध्यान से देखो, अगर ये समझ में आ रहा है तो एवरीवन, ट्रेड पेएबल को मैंने रिड्यूस किया और बचा हुआ सेटल कर दिया। तो ट्रेड पेएबल बुक्स में नहीं चाहिए, तो मैंने ट्रेड पेएबल को पूरा रिवर्स किया और फिर मैंने आपको क्या सिखाया? जिसका कोई नहीं उसका कौन है? कैपिटल रिडक्शन। तो मैंने कैपिटल रिडक्शन में डाला। अब उनको जो जो मिला वो मैं लिख रहा हूं, पूरी क्लास का ध्यान इधर। नो वन इज गोइंग टू राइट डाउन। शेयर सरेंडर्ड account debit. Can you please check entry number 2? What is the share surrendered balance? So I have reversed whole 5 lakh. Why 5 lakh? I'll explain you. इसको convert किया मैंने to preference share capital. Can I have the figure, friends? 1 lakh. Now I will give you a connection between this and this entry. This preference share capital was issued to these debenture holders. Yes or no? 2 I shall say equity shares. Can you please tell me, dear friends, equity share
कितने इशू किए ऐसा बोला है, या हमें सिर्फ ये पता करना है कि कितना इशू किया, हमें खुद से पता करना है? कुछ बोला है क्या कितने इशू किए? नहीं। सो मैं अभी आपको बताता हूं, ट्रेड पेबल को कितने से कम कर दिया था? 50%। मतलब 72,000 into 50% is how much? 36,000. What was the balance remaining? 36,000. Even that was issued, or मतलब settled with the issue of what? Equity share capital. So can I not say 36,000? Now why 36,000? Let's understand. 50% was reduced. Balance 50% was settled by what? Giving equity share capital. अब मुझे बताओ इस equity share capital पर किस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है? Trade payable. Now go and read adjustment number G. Go and read adjustment number G. The shares surrendered and not reissued shall be cancelled. मतलब अभी जो जो हमारे पास शेयर सरेंडर था वो यूज किसके लिए हुआ? डिबेंचर होल्डर। और किसके लिए यूज हुआ? इक्विटी शेयर होल्डर। बचा हुआ क्या करेंगे? वी विल ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो दिस इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड कैंसलेशन। ये समझ में आना, ये कैंसलेशन के लिए था, ये किसके लिए था? ट्रेड पेएबल के लिए था। और वो ऊपर वाला किसके लिए था? डिबेंचर होल्डर। बेटा अब मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो मुझे बताओ कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा? 3,64,000। अब बेटा जी ये मैं कनेक्ट कर देता हूं, ये वाला जो पॉइंट था वो कनेक्ट होता है इसके साथ। सो ट्रेड पेएबल को जो मिलना है 50% के लिए वो मिल गया क्या इधर? यस और नो? सो आई हैव गिवन समथिंग टू द ट्रेड पेएबल आल्सो। आई हैव गिवन 1 लाख टू होम? डिबेंचर होल्डर आल्सो। सो बेटा जी अब मुझे बता दो कि जो उनको देना था वो दे दिया मैंने, बचा हुआ कहां डाला? कैपिटल रिडक्शन। नेक्स्ट चीज, ट्रेड पेएबल का बैलेंस जीरो होगा, ये मैंने आपको समझाया था, क्योंकि 50% कम किया और बचे हुए 50% के लिए हमें क्या देना है? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर देने के लिए ट्रेड पेएबल की एंट्री से नहीं दे सकते, वो देने का तरीका कहां से है? फ्रॉम शेयर सरेंडर्ड टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल। से यस और नो? नाउ रेज योर हैंड इफ यू हैव गॉट अ क्वेरी। सो कैन आई अज्यूम दिस इज क्लियर? चलो बताओ इसमें सीक्वेंस क्या फॉलो करोगे घर पर रीड करते हो? पहली एंट्री किसकी? किसको रिड्यूस करोगे? डिबेंचर होल्डर। एग्रीड? तो रिड्यूस करोगे कितना? पूरा 75%। इश्यू की एंट्री यहां पर नहीं होगी। फिर किसको रिड्यूस किया? ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल को भी रिड्यूस कर दोगे। एग्रीड? इश्यू की एंट्री यहां पर नहीं होगी। फिर थर्ड एंट्री किसकी करोगे? आवाज नहीं आ रही है? शेयर सरेंडर की। एग्रीड? तो शेयर सरेंडर से इशू करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और बचे हुए क्या कर देंगे? कैंसल। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो किसको गए? डिबेंचर होल्डर। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो किसको गए? ट्रेड पेएबल। और जो कैंसिल हो गए वो कहां चले जाएंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो यू कैन राइट इट डाउन। नरेशन हम साथ में लिखेंगे। being claims of debenture holder, being claims of debenture holders and trade payable settled। अभी सेटल्ड वर्ड को पूरा वैसे का वैसा मीनिंग मत देना, तुमको पता है कि डिबेंचर होल्डर को इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन दिया है एंड बैलेंस ऑफ द क्रेडिटरी सेटल्ड, बट क्लेम एज पर स्कीम बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो हमने क्या बोला? वापिस से बताओ। बीइंग claims of debenture holder and trade payable settled by issue of shares from share surrendered, by issue of shares from share surrendered, by issue of shares from share surrendered, and balance transferred to what? Capital reduction account.
and the balance transferred to capital reduction account. Appreciate this. After the fifth entry, sixth one. ठीक है, अब इजी है बेटा प्रॉब्लम, अब कोई दम नहीं रहा प्रॉब्लम में. प्लीज गो एंड चेक, एवरीवन प्लीज गो एंड चेक. आर यू देयर? प्लीज रीड एडजस्टमेंट नंबर एफ. क्या लिखा? बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट शुड बी रिटन ऑफ. कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस निकालो अभी. टेक ऑन अ कैलकुलेटर. 1,68,000 प्लस 72,000 प्लस 3,64,000, 6,04,000. अभी 6,04,000 को पी एंड एल अकाउंट के अगेंस्ट राइट ऑफ करेंगे. पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 6 लाख. तो 4,000 कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व. सो लेट्स मेक द एंट्री बेटा. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 6,04,000 to profit and loss account 6 lakh. And where will the balance go? To capital reserve. क्या नरेशन लिखोगे? बीइंग. क्या लिखोगे नरेशन? बीइंग balance of P&L account written off as per the scheme. Being balance of P&L account written off as per the scheme. राजा बेटा अभी एक बार बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करके बताओ. बैलेंस शीट के फिगर्स प्लॉट करो. आ जाओ बैलेंस शीट के फिगर्स प्लॉट करके दिखाओ. चलो मुझे बताओ मशीनरी में कोई चेंज है क्या? जल्दी से अलर्ट. मशीनरी में कोई चेंज है क्या? सो कैन आई नॉट राइट डाउन 1 लाख? अच्छा नेक्स्ट. इन्वेंट्री में कोई चेंज है क्या? 320. ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज है क्या? 270 एज इट इज. बेटा बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं, एज इट इज. सो राजा बेटा जी पी एंड एल अकाउंट की क्या बात हो गई? 0. ऑल राइट, यहां तक तो हम आ गए. अब एकदम सिंपल सिंपल काम करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं. प्रोविजन फॉर टैक्स में कोई चेंज किया तो 24,000. ट्रेड पेबल कितने का बच गया? 0. बेटा जी डिबेंचर कितने के बच गए थे? अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला 25% बचने चाहिए. सो बेटा 2 लाख का 25% 50,000 और अक्रूड इंटरेस्ट का 25% 6,000. दिस विल रिमेन एज इट इज. चलो मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कितना मिला? डिबेंचर्स को कितना मिला? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल परसेंटेज दिए क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या? 12%. 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है बेटा जी? 1 लाख. अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले इक्विटी शेयर को क्या किया था तुमने? सरेंडर नहीं, पहले सब डिवाइड कितने का कर दिया था? 10 रुपीज. फिर उसका सरेंडर कराया कितना? 5 लाख. तो बचा कितना था? 5 लाख. और तुमको याद है क्या और भी ट्रेड पेबल को इश्यू किए थे? ट्रेड पेबल को कितने के इश्यू किए थे? 36,000. इसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कहीं पर भी नहीं आया, जाके चेक कर लो एंट्रीज में. एंट्री नंबर 2 में 5 लाख दिख रहा है, सरेंडर कर दिया. इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर मतलब वहां पे 5 लाख से कम हुआ. और एंट्री नंबर आई गेस लास्ट सेकेंड एंट्री में 36,000 इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया. गो एंड चेक. सो बेटा जी इक्विटी शेयर कैपिटल 5,36,000 होगा कि नहीं होगा? अच्छा कैपिटल रिजर्व में कितना गया? कैपिटल रिजर्व मेरे बच्चों के बोलने के हिसाब से कितना है? 4,000. कैन यू प्लीज टेक द टोटल नाउ? 1 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 270 प्लस 30,000 कितना आ रहा गुड़िया? 7,20,000. और राजा बेटा जी इधर की टोटल कितनी आ रही है? 720 पक्का बेटा? चेक करो, डू इट फॉर योरसेल्फ. जिस बच्चों को क्वेरी है रेज योर हैंड, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. एकदम क्रिस्टल क्लियर है सभी को? सो शैल वी फ्लोट द बैलेंस शीट नाउ? कोई क्वेरी किसी को? चलो आओ बैलेंस शीट बनाते फिर. तुम शुरू करो बैलेंस शीट.
नोट्स बाद में बनाएंगे, पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं. बैलेंस शीट एज ऑन, सॉरी बैलेंस शीट पहले इन द ब्रैकेट क्या लिखते हैं, एंड रिड्यूस्ड. Very good. It is particulars. Note number 8. And this is amount rupees. So I will write down here first one. Equity and liabilities. इसको अंडरलाइन कर कर शेयर होल्डर्स फंड, को अंडरलाइन कर कर ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस. बेटा मुझे एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 5,36,000. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख. सो कैन आई नॉट से इट इज 6,36,000? कैसे आया, 5 लाख प्लस 36,000 प्लस 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. डू यू ऑल अप्रिशिएट? अरे भाई बरोबर है क्या कि मैं अकेला ही कर रहा है, और लिखे हुए भी है तुम्हारे पास सारे फिगर्स. सो 636, रिजर्व्स एंड सरप्लस 4,000 है. अच्छा उसके बाद में 2 नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर आएंगे 12 लॉन्ग टर्म बोरिंग. बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या है, इधर ही लिख देंगे. क्या है लॉन्ग टर्म बोरिंग में, 12% डिबेंचर्स. कितने बेटा 12% डिबेंचर्स, 1,50,000. Then you have got the third part, current liability. करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल तो 0 हो गए, अक्रूड इंटरेस्ट अभी भी बाकी है. अक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट इज 6,000. बेटा इसके अलावा कोई और आइटम है, तो इधर हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और आगे क्या लिख देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स. बोलो कितना है, 24,000. एनी अदर आइटम फ्रेंड्स? आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव मी द टोटल. 7,20,000. तुम्हें पता है बेटा जी, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बताते वक्त इंस्टीट्यूट ने सारे के सारे शेड्यूल्स दिए. मतलब शेयर कैपिटल का दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का दिया है, ट्रेड पेएबल का दिया है, अक्रूड इंटरेस्ट का दिया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का दिया है. मतलब वही डिटेल शेड्यूल में लिखी है. अब ये इंस्टीट्यूट की भी बहुत खतरनाक चीज है, कुछ केसेस में शेड्यूल बनाती है, कुछ केसेस में नहीं. तो मैं आप पर छोड़ता हूं कि यहां पर आपको शेड्यूल्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं. सिखाना कोई बड़ी बात नहीं उसमें क्या सिखाना है, अभी तुमको पता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या लिखने वाले हो, जाके कैपिटल रिजर्व एंड यू आर गोइंग टू कोट द फिगर. आई एम जस्ट मेंशनिंग यू दैट इंस्टीट्यूट हैज गिवन शेड्यूल्स ऑफ ऑल द आइटम्स, जितने भी लाइन आइटम्स है उनके सभी के शेड्यूल्स दिए गए हैं. ठीक है, तो देखिए शेड्यूल जब बनाना होगा तब बनाएंगे. नाउ नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, सेकंड असेट्स, उसके अंदर फर्स्ट वन नॉन करंट असेट. अब नॉन करंट असेट्स में ए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. क्या बता सकते हो क्या कितना है? आवाज नहीं आ रही है. डू यू मीन 1 लाख? यस. ठीक है, पीपीई के बाद में बेटा नेक्स्ट आइटम क्या है आपके बैलेंस शीट में? करंट असेट्स, राइट? सो आई विल राइट डाउन सेकंड करंट असेट. करंट असेट में देयर इज नो चेंज इन इन्वेंट्री.
Inventory will be 3,20,000. There is no change in trade receivable. Trade receivables is 2,70,000. बैंक बैलेंस में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000. My dear friends, there will not be anything called as P&L account. So what should be the total? Does it turn out to 7,20,000? Yes. अब नोट्स किसके किसके बनाने के? शेयर कैपिटल का तो बनाना ही बनाना है. बाकी के नोट्स भी इंस्टीट्यूट ने बनाए. तो नोट्स कितने बने पता है तुम्हें? 2, 3, ये 4 बनाएंगे और इसको बना देंगे 5. ठीक है. सो लेट्स गो ऑन फ्रेंड्स एंड नोट्स लिख लेते हैं. नोट्स 1, नोट्स टू द बैलेंस शीट. पहला क्या आएगा? शेयर कैपिटल. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथोराइज शेयर कैपिटल. बेटा क्या आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल के डिटेल्स दिए क्या? आई एम आस्किंग यू समथिंग. डिड दे गिव यू ऑथोराइज शेयर कैपिटल? नो. सो आई डोंट नो. डॉट डॉट डबल अंडरलाइन. फिर इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल. बेटा मेरा तरीका एकदम सिंपल है. मैं इधर लिखता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल. मुझे फिगर पता है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? यस, मुझे फिगर पता है 5,36,000. सही यस और नो? तो अब मैं उसके बेसिस पर से नंबर निकाल देता हूं. 53,600. ये समझ में आ रहा है क्या कैसे आया? क्योंकि प्रत्येक शेयर कितने रुपए का है? 10. सो पहले मैंने 5,36,000 लिखा, उसको डिवाइड बाय 10 किया, तो आई गॉट द क्वांटिटी. एंड व्हाट इज द क्वांटिटी? 53,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. फिर उसके बाद में आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12%. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 1 lakh. डिड दे गिव यू द फेस वैल्यू? कितनी है? 10 दी है. चेक करो. रुपीज 1 lakh है. ऐसा कहीं नहीं बोला कि रुपीज 10 है. कहां पे बोला है? सी में. ऑल राइट, सी में बोला है. सो हम कितने बोलेंगे? 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. बेटा अब तुम क्या करते हो पता है क्या? घाई एग्जाम में इसी वर्किंग नोट को जल्दबाजी में उड़ा के आते हो, और वो एग्जामिनर यहीं पर बैठा रहता है चेक करने के लिए कि कैसे लिखा है नोट. इसमें क्वांटिटी लिखने का, फेस वैल्यू लिखने का, पूरे डिटेल के साथ में इसको इज्जत से लिखे हो. क्योंकि बाकी की वर्किंग नोट नहीं भी बनाओगे तो मार्क्स काटने का इतना गुंजाइश नहीं है. और बना लोगे भी तो क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स ही तो लिखोगे, और क्या लिखोगे? बरोबर है कि नहीं? आई एम गिविंग यू कॉमन सेंस. कैपिटल रिजर्व में क्या लिखोगे? कैपिटल रिजर्व ही तो लिखोगे. उधर मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं है. इधर जब डिटेल्स लगते हैं तो लगते हैं. सो हाउ मच इट वुड बी माय डियर फ्रेंड्स? 6,36,000. अब देखो बाकी के नोट्स में मेरे को इतना कोई बड़ा बात नहीं है. सेकंड वाला नोट कौन सा है? रिजर्व एंड सरप्लस. हाँ फटाफट लिखो. रिजर्व एंड सरप्लस क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व बताओगे नहीं कितना है? 4,000. और फिर सड़ा के हमको बोल दिया गया वापस 4,000 टोटल ले लो. होपलेस. फिर कैपिटल रिजर्व के बाद में थर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग. ससुरे बताओगे नहीं लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या है? 12% डिबेंचर्स. कितना है बाबू? 50,000. ये वापस टोटल ले लिया 50,000 ससुरे. फिर उसके बाद में फोर्थ आइटम था हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और उसको अंडरलाइन करके हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स. बताओगे नहीं? 24,000. और ये टोटल लिए ससुरे 24,000. फिर राजा बेटा जी आपका फिफ्थ आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट.
इसके अंदर हम लिखेंगे मशीनरीज। क्यों मशीनरीज की तो बात कर रहे हैं ना, 1 लाख, और ये टोटल कितना आ गया 1 लाख। तो बेटा जी अगर गौर से देखा होगा तो लास्ट की वर्किंग नोट बनाने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। जो टाइम लगना चाहिए वो लगना चाहिए शेयर कैपिटल में। जो डिटेल्ड वर्किंग नोट है वो डिटेल्ड में बनाओ। हैप्पी? यस। अच्छा, टाइम नहीं मिला एग्जाम में, क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो बैलेंस शीट को प्लॉट कर बैलेंस शीट तो पता होगी कैसे टैली होने वाली है। बैलेंस शीट पहले लिख देना, हो सके तो वहीं पर डिस्क्लोजर दे देना सारे फिगर्स के, और फिर नोट ना बनाओ तो ठीक है, बट वो कब करना, ओनली इन वन सिनेरियो व्हेन यू डोंट हैव टाइम। ठीक है, सो कम डाउन टू द रिमार्क कॉलम। कल वैसे मैंने लिखा कर दिया था, ठीक है। कम डाउन टू द रिमार्क कॉलम ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्या क्या लिखा बेटा रिमार्क कॉलम में? कल नहीं दिखा, चलो लिखो अभी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, लिखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर सरेंडर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर सरेंडर, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर सरेंडर डेफिनेटली रिवाइज, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर सरेंडर डेफिनेटली रिवाइज। सेकेंड पॉइंट लिखिए, रीड द एडजस्टमेंट नंबर, रीड द एडजस्टमेंट नंबर D, read the adjustment number D in the bracket लिखिए। focus on the wording, focus on the wording, focus on the wording in consideration of the reduction, focus on the wording in consideration, in consideration of the reduction. Then write down next adjustment number, adjustment number E, adjustment number E, balance is completely settled, balance is completely settled. Is that okay? ये 3 वर्डिंग्स पर आपको फोकस करना है। इन द ब्रैकेट लिखो रेफर ऑडियो गिवन बाय सर, रेफर ऑडियो गिवन बाय सर, या रेफर ऑडियो, इतना भी लिखा तो ठीक है। रेफर ऑडियो। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, पुट ऑन योर मोबाइल्स। जब प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो मैं मेरे लाइन में समझा दूंगा आपको क्या बोलना है। पुट ऑन योर मोबाइल्स। आर यू रेडी? ओके, सो एट द काउंट ऑफ 3 यू हैव टू पुट ऑन योर ऑडियो। 1 2 3 स्टार्ट। In problem number 8, we have explained the concept of share surrender. Basically what happens in share surrender is, first the shares are subdivided, and once the shares are subdivided, they are surrendered. So you have to make 2 entries. First one is share capital account debit to share capital account, the divided part, and then share capital account debit to share surrendered. Students should note that share surrendered are still alive. Now what you do with the share surrendered in this problem is, you have given part of it, 1 lakh, converted into preference share capital, and you have converted 36,000 into equity share capital. Preference share capital was given to the debenture holder, and 36,000 worth of equity share capital were given to the creditors. So the entry will become share surrendered to preference share capital to equity share capital, and the balance which are not being issued is cancelled, so hence they will be transferred to capital reduction. So these entries are simple. The point to be noted here is, the debenture reduced their claim by 50%, and they agreed to reduce by 50% because they were getting preference share capital. So the key word here is, in consideration of reduction, you have reduced the preference share capital. Remember, remember debentures will still appear to the tune of 25% in your balance sheet. But when it comes to trade payable, they have said trade payable have reduced by 50%. और ये रिडक्शन करने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला, और उन्होंने बोला कि द बैलेंस इज सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल. दिस टेक्निकली मींस दैट द कंप्लीटली ट्रेड पेएबल विल बी ट्रांसफर्ड टू वेयर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. द एंट्री इज ट्रेड पेएबल to capital reduction account. Is that okay? So please read all the working notes which I have given to you. It will help you in understanding. Is that okay? Thank you. So with this, I must say that ये टॉपिक एंड हुआ. अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो. तुम्हारे कितने टॉपिक हो गए? 2.
एक हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और एक दूसरा कौन सा हुआ? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दोनों पर ही एग्जाम बेस्ड प्रॉब्लम्स थे, हमने देखे। अब मैं आपको बोल रहा हूं ये दोनों टॉपिक को रिवाइज कर रेडी कर लो। तुम्हारे को टाइम लिमिट देता हूं 2 से 4 घंटे के बीच में, ठीक है? इनको रिवाइज कर रख लो और फिर मैं आपको दूंगा एक पेपर जिसको आपको रफ में सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप एक बार रिवाइज कर लो। रिवीजन करने के लिए मैं आपको दूंगा 2 दिन, आज का और कल का। क्यों ऐसे 2 दिन दे रहे हो? अकाउंट्स के लिए आई होप कि आप हर रोज आधे से 1 घंटे तक पढ़ते रहेंगे घर पे जाने के बाद में, मुझे नहीं पता कितना पढ़ते हो। तो अगर तुम ये आधा 1 घंटा अगर आज दे पाओ, आज और कल में, क्योंकि आज और कल में कोई होमवर्क नहीं होगा, तो उस केस में आपका दोनों टॉपिक रिवाइज कर हो जाएगा। रिवाइज करने के बाद मैं एक टेस्ट सीरीज दूंगा आपको, राइट, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। ये आपको हेल्प करेगा कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हो सके तो इसका समरी बना लेना ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम, एंड आपके 2 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। अभी तक हमने कितने मार्क्स कवर कर लिए? कम से कम 20 मार्क के आसपास हमने कवर कर लिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और डिसोल्यूशन। टेक्निकली 20 मार्क्स के आसपास हमने कवर कर लिए। 10-10 मार्क के अगर दोनों के क्वेश्चन पकड़ू तो मैं। सो विद दिस लेट्स वाइंड इट अप। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन